Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So today we have come up with a new topic that is called fundamental duties. As far as concerned about the constitutional framework, so far we have covered starting from the making of the Indian Constitution. In the constitutional framework, we have done making of the Indian Constitution. After that, we have done preamble. After that, we have completed the salient features of the Indian Constitution. Then we have covered the basic structure of the Indian Constitution. Then we have covered the amendment and its procedure in the Indian Constitution. Right. After that, we have done the citizenship, then fundamental right, and then DPSP. And this is the last chapter into the line of constitutional framework. So when we talk about fundamental duties, when initially India got independent, at the time of independence, the fundamental duty was not the part of the original constitution. It was later on incorporated by the 42nd Amendment of 1976, a committee led by Sardar Swaran Singh, and it also comes under the part 4th A of the Indian Constitution, which comprises of the 11 fundamental duties that Indian citizens have to fulfill. Right. Now, as a responsible Indian citizen, we are bestowed with a certain rights and duties. Alongside the rights, it is crucial to be aware of our fundamental duties, and to fulfill them with a consistency. And these duties require us to adhere to the laws and to fulfill our legal obligations. And the Indian Constitution outlines the 11 fundamental duties that serve as the guiding principles of for the citizens. So when we talk about fundamental rights, yes, they are enforceable in the court of law, they are justificable in the nature. But when you talk about fundamental duties, they are neither enforceable in the court of law, neither they are justificable in nature. But it doesn't mean that you should not have the knowledge about our fundamental duties. When you are concerned about your fundamental rights, at the same time, you should be equally aware about your fundamental duties towards the nation. Now, these duties encompasses a wide range of responsibilities reflecting the values and the ideas that contributes to the betterment of the Indian society, right? And initially the Indian Constitution only included the fundamental rights without the fundamental duties. The duties of the state were outlined as the directive principle of the state polity. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना, फंडामेंटल ड्यूटीज उसका पार्ट नहीं था. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th ए का कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में आता है, जिसके अंदर 11 आर्टिकल्स हैं, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में लेके आया. और जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो हमने लिया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से. कहां से लिया है? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से. गॉट माई पॉइंट? The fundamental duties were taken from the constitution of the USSR, and in modern world we call Russian constitution. What is the background? I've already told you that it was there was a committee set up by Congress party, Sardar Swaran Singh in 1976, which deposited that report, which tells the government that we should also incorporate the fundamental duties in our constitution, which will make our citizens more morally obliged towards the nation. And the committee recommendation incorporating of the separate chapter of the fundamental duties in the constitution, right? It emphasized the importance of citizens. It emphasized the importance of citizens recognizing their duties alongside their rights. ये emphasize करता है importance of their citizens कि आपको सिर्फ rights के बारे में ही knowledge नहीं होना चाहिए, आपको अपनी duties के बारे में भी पता होना चाहिए. फिर उसके बाद ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड यू कि दैट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में आता है, जिसमें 15A आर्टिकल के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं वो हम देखेंगे. ठीक है.
list of 11 fundamental duties in India. The Indian Constitution include a single article called that is 51A in part 4th A which deals with the fundamental duties. These duties were added through the 42nd Amendment 1976 outlining the 11 fundamental duties. आपको एक एक ये fundamental duties जो है वो thoroughly मगअप करनी पड़ेगी. कई बार एग्जामिनर चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे और एग्जाम्स हो उनमें डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज का एक स्टेटमेंट दे देता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है. तो 11 की 11 आपको थोरोली याद होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं एक एक. पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल. आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अबाइड रहना है, रेस्पेक्ट करना है इसके आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशन को, हमारे नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है. ये फंडामेंटली ड्यूटी है हमारी. टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल. हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उनको चेरिश करना है, उनके आइडियाज को, उनके नोबल आइडियाज को चेरिश करना है जिनसे हम इंस्पिरेशन मिली हमें नेशनल स्ट्रगल की. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया. हमें भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करनी है. ठीक है, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी है. फिर चौथा है टू डिफेंड कंट्रीज रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन. जब भी राष्ट्र को आपकी जरूरत पड़ेगी और राष्ट्र आपको बुलाएगा तो आपको आना चाहिए. दिस इज नेशनल ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर ए नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. पांचवा है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. आपस में जो है फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए. ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी, रिनाउंस द प्रैक्टिशनर. मतलब किसी भी प्रकार की जो डेरोगेटरी एक्टिविटीज हैं उनको जो है हमें छोड़ देना चाहिए. एंड टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए. फिर उसके बाद हम देखते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग. हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को. टू डू हैव ए कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स. लिविंग क्रीचर्स की ये आप देखिए हमारी मूलभूत भावनाएं कैसी हैं कि हमें जो है लिविंग क्रीचर्स के ऊपर भी जो है हमको ये लगता है कि दैट दे हैव ऑल्सो लाइफ, तो हम उनके बारे में भी सोचना है. गॉट माई पॉइंट. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा करते रहना चाहिए. ठीक है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए. टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व द वायलेंस नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है. एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट. हमें इस तरह का हमेशा काम करना चाहिए, नेशन को कैसे एक्सेलेंट और बनाए और कलेक्टिव एक्टिविटी जिससे कि जो राष्ट्र है हमारा और तेजी से आगे बढ़े और जो और प्रगति के पद पर आगे बढ़े. फिर उसके बाद 11वां है हु इज द पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन. वो 6 साल से लेके 14 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन जो है दैट इज कंपल्सरी. ठीक है, ये फिर उसके बाद में हमने इसको एक्ट में भी बना दिया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है. ये फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के. ठीक है, मॉरल और सिविक ड्यूटी है, जैसे आपको बताया चेरिश करना है नोबल आइडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के. ठीक है, नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है. तो ये हमें एक तरह से हमारी मॉरल और सिविक ड्यूटी है. ठीक है, फिर उसके बाद रूटेड इंडियन ट्रेडिशन की वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट रखनी है कि कोई ऐसी एक्टिविटी सोसाइटी में नहीं फैलानी है या डेरोगेटरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे सोसाइटी में ब्रदरहुड को नुकसान पहुंचे, फ्रेटर्निटी ना हो. ठीक है, तो इस तरह के काम नहीं करने. तो ये सोसाइटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अपलिफ्ट करती है जो इंडियन सोसाइटीज़ की जो डीप वैल्यूज़ हैं. फिर एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स हैं, अनलाइक द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट एक्सटेंडेड टू द ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स. फंडम ड्यूटीज आर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द, जैसे फंडामेंटल राइट्स कुछ छोड़ के 15, 16, 19, 29, 30 ये तो सिर्फ भारतीयों के लिए थे, बाकी तो सब के लिए एप्लीकेबल थे जो इंडिया के अंदर रिसाइड कर रहे हैं. लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडियंस के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है एप्लीकेबल. ठीक है, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसको याद रखना है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये नॉन जस्टिफिकेबल है.
ठीक है, सिमिलर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मतलब देयर इज नो punishment or that you neither you cannot force somebody to do this thing, but this is a moral or civic sort of, I was calling it obligation. Yes, government can implement it, but that through also a suitable through a suitable legislation. Got my point? Now next we will try to do the importance of the fundamental duties. I've already told you that it provides the according to the late Prime Minister Honorable Indira Gandhi, the moral values of the fundamental duties lies in the establishment of the democratic balance by making individuals equally conscious of their duties as, मतलब इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने आप को कॉन्शियस आप मानते हो कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसे ही आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी राष्ट्र के प्रति हैं उसके लिए भी आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, उसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा. फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्यू पॉइंट: रिमाइंडिंग सिटीजन्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये हमेशा याद दिलाता रहता है सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा. वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जैसे आप हमारे नेशनल एम्बलम की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना है, जैसे कुछ लोग नेशनल फ्लैग को जला देते हैं, तो इस तरह की जो एंटी नेशनल गतिविधियां हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है. फिर दे हेल्प इन द फॉस्टरिंग सेंस एंड रेस्पेक्ट द रेवरेंस टुवर्ड्स द नेशनल सिंबल्स एंड द पब्लिक रिसोर्सेज. Inspiring and commitment, inspiring discipline and commitment. The fundamental duties inspire citizens, promote a sense of discipline, commitment. ठीक है, ये encourage करता है citizens को to actively participate in the realization of the national goals, actively fostering collective effort toward the nation building. ये सोसाइटी citizens को motivate करता है कि कैसे हम collectively जो है हमारे nations को uplift करेंगे, ठीक है. फिर political justification भी है, that the inclusion of the fundamental duties was justified by Acharya Gokhale, then Law Minister Indira Gandhi, the Prime Minister, as means to strengthen democracy, establish a balance between rights and duties. फिर है ये relation between fundamental rights and duties. The Constitution of India is not only character the fundamental right, but also outlines the fundamental duties. मतलब fundamental right भी है Constitution में और fundamental duties भी हैं. आपको मैंने ये बताया था कि फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से. फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी थे, वो लीगली इन्फोर्सेबल है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है फंडामेंटल राइट्स का और ड्यूटीज को. को रिलेशन है आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 51 हाईलाइट द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन. मैंने आपको एक पिछले फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी बताया था कि जो राइट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, दे आपस में कोरिलेटिव होती हैं, ठीक है. तो ये इसका सबूत है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है. फिर उसके बाद आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 21A guarantees the right to education, while 51A imposes the duty on the parents and guardians. 51A subclause K to provide free and compulsory education of children 6 to 14 years. तो आप देखो कि कैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कंपेल कर दिया हमने कि ताकि सोसाइटी के अंदर लिटरेसी रेट बढ़े, क्योंकि जब पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, राइट. सो दिस इज द मेन एसेंस ऑफ दिस थिंग. फिर उसके बाद नेग्लेक्टिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द नेम ऑफ राइट टू free speech. People sometimes they incite the violence and spread the fake news, but this contradicts the duty to maintain the I would say the social harmony and unity of the society. फिर उसके बाद political, religious divisions हैं society के अंदर. Now at last we will discuss the important Supreme Court judgment on the fundamental duties. Some important judgment of the Supreme Court on the fundamental duties. केस था चंद्र भावना बोर्डिंग एंड लॉजिंग स्टेट वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर 1969. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया दैट अपील्ड ऑफ लेजिस्लेचर इंपोजिंग मिनिमम वेजेस फॉर होटल एंड रेस्टोरेंट एम्प्लॉयज एम्फेसिस द इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल वेलफेयर. जो होटल इंडस्ट्री के अंदर एक भाई मिनिमम वेज होना चाहिए. ये चंद्र भावना बोर्डिंग एंड लॉजिंग वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर. सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपेल कर दिया कि एक मिनिमम वेजेस जो है फॉर होटल और रेस्टोरेंट्स वालों के होने चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर. फिर है एक बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है. पहला केस था चंद्र भावना बोर्डिंग लॉजिंग वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर 1969. दूसरा है बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995. अपील्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड स्टेटिंग दैट दे रिकॉग्नाइज द मेरिट एंड incentivize the citizen
टू स्ट्राइव ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं मेरिट और इंसेंटिवाइज करते हैं सिटीजन्स को, ताकि वो मोटिवेट हो एक्सीलेंस के टूवर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा MC मेहता केस वर्सेस कमलनाथ सेकंड 2000, इनवैलिडेटेड ए लीज ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, imposed fines for harming the environment, highlighted the duty to protect it। जैसे आपको याद होगा इन्वायरमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट 11 में से एक आर्टिकल ये भी है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। फिर श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डायरेक्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडिंग ड्यूटी वोट टू इन इलेक्शंस। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई राइट टू वोट है वो भी एक तरह से राइट टू वोट है, वो वैसे तो फंडामेंटल राइट है बट एक फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है। फिर एक जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज पे, जो 1998 में फॉर्म हुई थी, इन द रेस्पॉन्स ऑफ नीड ऑफ इफेक्टिव प्लान फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज with the goal of instilling a sense of responsibility and civic the conciseness of the individuals from the early age। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, representation of 1951, members of the parliament or the state legislature indulging in the corrupt practice such as seeking votes in the name of religion, when the people are seeking votes in the name of religion can be held accountable under this act, ensuring the ethical conduct elections। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डाला, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट डाला। ठीक है, ये सारे these all are the parts of the important aspects of the fundamental duties। Now at last we will solve the important MCQs of the chapter fundamental duties। Which of the following statement is are true the fundamental duties of the Indian citizens? The legislative process has been provided to enforce these duties, they are correlative to the legal duties। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, the legislative process has been provided to enforce these duties। कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है क्या प्रोवाइडेड इन्फोर्स दीज ड्यूटीज? नहीं, तो जहां जहां फर्स्ट है उसको काट दीजिए। फिर दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर कोरिलेटिव, हाँ यू कैन से, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर विच ऑफ द आर्टिकल पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? 15A में। ठीक है, कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कहां से लिए? यूएसएसआर से लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? 4A में। ये तो ऑलरेडी खैर लिखा हुआ है। 51A आर्टिकल में 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि रशिया से ली गई हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर। कहां से लिया था? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया वाज टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर। तो अभी तक आपने देखा जो जो पढ़ा है उसी में से आया है सारा क्वेश्चन, ऐसा कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं था जो कि बाहर से गया हो। अगर आप जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको भी एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। इनकेस कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विल नेक्स्ट टाइम विल ऐड दोस थिंग्स, राइट? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।